The Bank of Russia again making headline by updating they are ready to start their cross-border payment with cryptocurrencies like Bitcoin. So ये अगर cryptocurrency payment start हुआ then Iran will be the first country to participate in trade agreement with Russia. क्योंकि ईरान का जो cryptocurrency legalization है which is far more stable, far more old, far more legalized than any other countries in the world after our El Salvador. So starting from 2020 and 21 पे जब रशिया almost Bitcoin को बैन किया था, if you guys can remember properly, एक ड्रॉप भी आया था मार्केट पे, एक क्रैश भी आया था after listening to these stories के Russia is going to ban. One of the biggest entity in cryptocurrency market is going to ban the cryptocurrency payment or using cryptocurrency altogether, जिसके चलते बहुत बड़ा क्रैश भी आया था. But recently because of this sanction on Russia, because of this all US, Europe and Russian conflicts, Russia is now actually they are forced to start paymenting and accepting payment with Bitcoin for any cross-border trade, like specifically जो सब country करना चाहता है. So it's going to be a huge movement for entire Bitcoin community. At the same time, they are issuing new policies to open your cryptocurrency account if you are a Russian citizen or if you are someone who is looking to open cryptocurrency account in Russian accounts, then you have to have their basic KYC. It seems like other than any other countries, in every Russian cryptocurrency exchange, if you are not a Russian citizen, if you are not someone holding Russian passport, you won't be able to open cryptocurrency account in any exchange which are based on Russia. Because they need a special KYC and it will only allow the Russian citizen. ताकि इस पे money laundering ना हो and बिना मतलब का कुछ payment, बिना मतलब का कुछ cryptocurrency exchange ना हो, जो कि Russian government का जो financial stability है Russian ruble उसके लिए खराब हो. क्योंकि still now Russian ruble is the only dominating currency in the Russia and it will be the one and only dominating currency, one and only national currency of Russia. So just Bitcoin is the alternative to payment. Suppose there is any sanction from your country and you still want to deal with Russia, you can just deal with cryptocurrency. You can just deal with Bitcoin with Russia. That is the main purpose behind this new step taken by Russian government. So hey guys, this is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. Like as always, expect all the good news but prepare for all the bad situation, bad news. So आज के stories में कुछ bad news है, but we should all get used to of this right now. So anyways, before I go forward, make sure you're liking this video, subscribing this channel to stay profitable, stay updated, stay educated. And if you feel like all these videos are helpful to you, make sure you are sharing this video with your friends and family. Next biggest news from today's video is जो Martin Gox related hacking हुआ था back in 2011. उस टाइम पे और एक ऐसा अकाउंट था और एक ऐसा एड्रेस था जो कि 4th of September मतलब डे बिफोर यस्टरडे फिर से ओपन हुआ है एंड जहां से 5000 बिटकॉइन का मूवमेंट नोटिस किया गया है ऑन चेन. सो ये बोला जा रहा है कि बैक इन 2011 दिसंबर 19 पे जब बिटकॉइन का वैल्यू $17 था, जस्ट इमेजिन 2011 का बात है, ये अकाउंट क्रिएट हुआ था 2013 पे, बट ये बिटकॉइन जब लूटा गया था, जब हैक हुआ था, इट वाज बैक इन 2011 19th of December. बिटकॉइन का वैल्यू $17 था एंड बिटकॉइन का वैल्यू $17 से नीचे 0.01 सेंट्स तक गिरा था ऑन अ सिंगल ट्रेडिंग सेशन. तो ये जो हैकिंग डेट था, उस हैकिंग डेट में बिटकॉइन का प्राइस था $17. जस्ट इमेजिन ऑन अ सिंगल डे, ऑन अ सिंगल सेशन 0.01 सेंट्स. मतलब आज के टाइम पे ऐसा बोल सकते हैं कि 100% डिक्लाइन इन अ सिंगल सेशन. कैसे लगेगा जो बिटकॉइन का प्राइस है $19,000 से नीचे जाके अचानक से $1,900 हो गया. हाउ डू यू फील मैन, हाउ डू यू फील? तो ये सब हुआ था बिटकॉइन पे एंड जस्ट इमेजिन जो 5000 बिटकॉइन रिसेंटली 4th of September को मूव हुआ है, उसका प्राइस अगर मैं लोएस्ट प्राइस चूज करूं, इट वाज 0.01 सेंट्स एंड आज के रेट में बिटकॉइन का प्राइस 19,900, लेट्स से 19,500. एनी वैल्यू मोर देन $20 इज प्रॉफिट फॉर देम. Just imagine, last 1 week से August 28, August 29 and September 4th, ये 3 दिनों से मार्टिन गॉक्स रिलेटेड
ऐसा 2-3 एड्रेस जो कि लास्ट 9-10 साल से बंद था, अचानक से मेन स्ट्रीम पे आया है। जैसे ही ये अपडेट हुआ था कि मार्टिन गॉक्स माइट रिपे देयर एग्जिस्टिंग यूजर्स, आई मीन नॉट राइट नाउ, जो लोग तब यूजर्स था उन लोगों के पैसा लौटाने वाला है कुछ हद तक। ये न्यूज मार्केट पे आते ही मार्ट गॉक्स रिलेटेड जितना भी हैकिंग एड्रेस था, जितना भी मतलब 25,000 बिटकॉइन हैक हुआ था, ये बिटकॉइन हैक होने के बाद कुछ 49 ऐसा एड्रेस है जहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये 49 एड्रेस पे कुछ एड्रेस जहाँ पे ह्यूजली बिटकॉइन होल्ड है, उस एड्रेस का 1-2 एड्रेस आज 9 साल बाद अचानक से मेन स्ट्रीम पे आने लगा है। तो इसके मतलब क्या हो सकता है? साथ ही साथ जो मार्टिन गॉक्स का जो यूजर्स है वो लोग बोल रहे हैं कि ये बस एक रूमर है कि वो लोगों को पैसा वापस करने वाला है, क्योंकि उन लोगों के लिए पैसा वापस करने का ना ही कोई डेट और अमाउंट अनाउंस हुआ है या फिर उन लोगों के पास कोई इंफॉर्मेशन आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेल द न्यूज था, मतलब ये न्यूज आते ही मार्केट पे एक बहुत ज्यादा ड्रॉप आया था जब ये बोला गया था कुछ 125,000 बिटकॉइन अलॉट हुआ है टू मेक ऑल द पेमेंट्स। ये मार्केट पे आते हुए ही क्रैश आया था एंड ये सब होने के बाद अभी तक इट्स बीन लाइक 2 वीक्स, अभी तक यूजर्स के पास ना ही कोई अपडेटेड डेटा है, डेट है, कुछ भी नहीं है। सो फार इट्स जस्ट अ रूमर्स। बट ये रूमर्स के चलते उस टाइम हैकिंग रिलेटेड जितना भी बिटकॉइंस था, ये सारे के सारे बिटकॉइन अचानक से मेन स्ट्रीम पे आने लगा है। अभी तक सो फार कोई भी लिक्विडेशन का तो अपडेट नहीं आया है। इट्स जस्ट द न्यूज कि ये सारे के सारे बिटकॉइन अभी मूव होना स्टार्ट हुआ है। लाइक लास्ट टाइम मैंने बोला था 10,000 बिटकॉइन, आज बोल रहा हूँ कि 5,000, 6,000, ये सब बिटकॉइन मूव होना स्टार्ट हुआ है। इट सीम्स लाइक दे आर गोइंग टू लिक्विडेट एट द सेम टाइम एंड इट इज गोइंग टू बी अ कैटास्ट्रोफी इनटू बिटकॉइन मार्केट। डोंट नो व्हेन, बट बी रेडी फॉर दिस सिचुएशन। It's all going to be worse from now, bro. But one good news for Binance users, I support their decision. Binance recently took this decision. जो इन लोग का डेडलाइन है which is 29th of September. 29th of September तक Binance पे जितना भी स्टेबल कॉइन है like USDC and USDT, ये सारे के सारे ऑटो स्वैप हो जाएगा to BUSDT पे। क्योंकि रिसेंटली जो भी तेरा यूएसडीटी के अगेंस्ट जो भी केस हुआ एंड उसके चलते जो भी ब्रेकडाउन हुआ मार्केट पे, उसको कंसीडर करते हुए आई थिंक बाइनेंस डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क विद एनी अदर स्टेबल कॉइन बट नॉन अदर देन BUSDT। क्योंकि BUSDT बाइनेंस का ही सोर्स्ड नेटिव टोकन, नेटिव स्टेबल कॉइन है। तो बाइनेंस बोल रहा है कि ये लोग डिस्करेज करना स्टार्ट करेगा, मतलब एकदम ट्रेडिंग पेयर को कैंसिल करना स्टार्ट करेगा कंबाइंड विद USDC विच इज द कॉइन बेस्ड नेटिव स्टेबल कॉइन एंड USDT थेटा। तो ये दोनों करेंसी रिलेटेड जितना भी पेयर है, ये सारे के सारे पेयर को कैंसिल करेगा एंड इट विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू BUSDT। सपोज यू स्टिल हैव $500 to $100,000 इन बाइनेंस अकाउंट, सपोज USDT पे है, वो USDT से खुद व खुद कन्वर्ट होके BUSDT हो जाएगा, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एंड आई ट्रूली सपोर्ट देयर कैंपेन। क्या पता USDT एंड USDC ड्रॉप नहीं होगा। तो इसीलिए Binance just want to stay away from all these possibilities and just want to be stable on their own. I support this thing. So let me know in the comment box कैसे लगा आज का वीडियो and what do you feel about this Mt. Gox, BUSDT's movement and Russia's this cross-border payment with Bitcoin. मतलब ये सारे के सारे डिसीजन कैसे लगा, just let me know in the comment box. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. Till then, take care. Like this video if you have liked this video. Share this video with your friends and family. Be a part of our Twitter and Telegram handle. As you all know, the most important trading update is about to come on the Twitter. So make sure you're a part of this Twitter account जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. टेक केयर. देव साइनिंग ऑफ.